डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी आईएसएसबी की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। हमारी आज की वीडियो ये एक मॉक इंटरव्यू है, जो कि ऑनलाइन एक कैंडिडेट का मैंने इंटरव्यू लिया था और उसके साथ आपको इस वीडियो में एक एनालिसिस और रिकमेंडेशन भी मिलेंगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि आईएसएसबी में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और उसके रिस्पॉन्सेस किस तरह के होने चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं। तो अभी आप लोग रिकॉर्डेड इंटरव्यू सुनेंगे और उसके आखिर में फिर एनालिसिस में आपको बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। Yes, sir. Okay. Okay, we will do this session ज़्यादातर अंग्रेजी में करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि फॉर्मेट जो है ना वो अंग्रेजी का होता है। बाकी Yes, sir. अकॉर्डिंगली उर्दू अंग्रेजी पर वो आगे चलते रहेगा। Okay, can you please describe yourself? Introduce yourself rather. Okay, sir. As you know, my name is Waqas Latif. My father name is Muhammad Shirim Sher. He was a retired army officer. I have recently completed my intermediate from a government college, Surgota, with about 68% to 68 to 69% marks in ICS field. And my father was working in army, and he has passed in 2015. And when I was in sixth class, and he was a Lance Naik. He was Lance Naik. And so and sir, my hobbies are to do exercise regularly. To do exercise, my hobbies are to do exercise. And sir, my hobbies are to do exercise, watch historical documentaries, and playing chess. Yes, sir. Okay, what about your siblings? जो बहन भाई हैं उनके? Sir, about my siblings, we are 4 siblings, and I am the eldest of them. I have 2 sisters and 1 little brother. They are all. One of them is studying in 4th class. One is in 9th, and another my youngest and my one sister is studying. Has completed her study of intermediate with FAIT about 85% marks. Okay, okay. Tell me about your father. Your father is deceased now, or it is alive? He is alive. आपके फादर हयात हैं या फौत हो गए हैं? Sir, my father is deceased now. Okay, क्या हुआ था? 2000 कब में हुआ? He was coming from Larkana he was going from Larkana to Pakistan for his business. And he car accident, and he couldn't survive it, sir. Okay. अच्छा, आपके फादर किस यूनिट में थे? कहाँ पे, मतलब कहाँ से? Sir, my father was in 3rd Engineering Battalion, and he served from 1998 or 1992 to 2008 or something. Like. Okay. Yes, sir. ठीक है। तो रिटायरमेंट नॉर्मल एज जो सर्विस लिमिट पे ली थी उसने? वो सर 18 ईयर्स है। यस सर, नॉर्मल एज पे ली थी उन्होंने। तो आप कभी किसी कैंशन में रहे हैं फादर के साथ? यस सर। वो किस कैंट में रहे? ये सर I don't know, I was too young. I was born in 2004. And I barely could remember anything about the camp where I was living with my father. Okay. But my brother told me that Okay, how would your best friend describe you? आपका जो best friend होगा वो आपको क्या describe करेगा? Sir, as per my best friend, he would describe me as a kind-hearted, decent, and honest person.
अच्छा, और एनी हैबिट विच यू वांट टू चेंज इन योरसेल्फ, कोई हैबिट हो, क्वालिटी हो जो आप कहते हैं कि इसको इम्प्रूव करें, चेंज करें? Sir, I want to become more punctual than now, sir. आप मतलब पंक्चुअल नहीं है आप? No, sir, it doesn't mean that I'm not punctual. I just say I want to become more punctual. As per now, I have been opening prayer regularly and 5 of them. But sir, right now I am not doing nothing exactly to be called that I am a busy person, and I would like to change my this habit, and like I would like to start an punctual life where I could discipline myself more than now. ओके, आपने आईसीएस किया हुआ है? Yes, sir. तो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? Sir, I wouldn't talk about one subject, but there are 3 subjects, sir. It is about physics, math, and computer science. So I like them. But the subject that I like most is sir, mathematics and computer science. I say computer science is my best subject, as I am more interested in computer science than mathematics. But I like mathematics because it opens my mind. There are multiple solutions to a single problem. I learned this from mathematics, and I really like this. ओके, And व्हाट computer क्वालिटी, science, as per ठीक है, व्हाट क्वालिटीज मेक अ गुड लीडर इन योर ओपिनियन? आपके ख्याल में एक अच्छा लीडर कौन होता है, उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं? sir, as per my observation, a good leader, a great leader, there are 2 type of leaders: a good leader and a great leader. A great leader can be a good leader, and for a leader, the qualities that are necessary that should be necessarily present in him is his communication skills, his way of thinking twice before acting once, and sir, his intellectual, and his responsible that he should be responsible and also care for his soldier, and he should be strict when it is needed. Yes, sir. In my opinion, these are the qualities that are necessary for a person to be a leader. ओके, हु इज योर रोल मॉडल एंड व्हाई? Sir, as per my role model, he is Tipu Sultan, because sir, I liked his one quality that he was a brave till the end. As per and the thing he said kind of it make me overjoyed after I remember it that living like a lion for a day is far superior than to live like a jackal for 100 years. Is the quote that he said, and it made me just joyful and energetic whenever I hear or recite it. तो टीपू सुल्तान के बारे में आपने कोई किताब, कोई चीज पढ़ी हुई है स्पेसिफिक? And say I found his biography online. अच्छा, ठीक है। ओके, टेल मी अबाउट द लेटेस्ट आर्मी टैंक। कोई पता है आपको आर्मी के बारे में? I couldn't tell about tanks, but I was recently seeing a ISPR a conference where he showed some militant operation conducted by Indian Army in Pakistan. आजकल क्या चल रहा है, जो मुल्क की जियोपॉलिटिकल हालात हैं, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? Sir, as per I am not an expert in geopolitics, but I would say that our war is not an option between us, India and Pakistan. As sir, it is not an answer to anything. War is not answer to anything. As per geopolitical problem, sir, our country is handling it well done. I would say they are handling it much better than it was before. And sir, as per the crisis of Indus Water Treaty, our government is taking it with careful observation and consideration. Okay. आपने कभी सुना है पुलवामा इंसिडेंट? Yes sir, I have about Pulwama. कब हुआ था ये, कोई मालूमात है आपके पास? Yes sir, it was in 2019 or 2018 or 2019.
where most of the Indian army got killed, where many of the Indian army soldiers got killed, and after that they tried a surgical strike in Pakistan, where we apprehended their one flight commander named Abhinandan, and other got killed during. ओके, आपके ख्याल में, आपके ओपिनियन में पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा थ्रेट है इस वक्त वो क्या है? दोबारा पूछ लूं? आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो इंटीग्रिटी है उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट आपके ख्याल में क्या चीज है? Say something, sir. Sir, it is PLA and BLF. They are the biggest threat by me, as per I know, because they are trying to do some nasty things in Pakistan and also in all Pakistan, our other provinces too. It is the biggest threat, and our national intelligence agencies are handling it well, I would say. ओके, ठीक है। अभी आपने जो फॉर्म फिल किया था उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस ये मैंने रैंडम किए हैं, तो ओके सर। एक तो उसमें आप जिस तरह पहले आपको बताया था कि आपकी हैंड राइटिंग जो ना वो मज़ेदार नहीं है, आपने कटिंग शटिंग वगैरह की है, तो ये चीज़ जो है ना इसको इम्प्रूव करें। और ओके सर। जो चीज़ आपके मतलब रेलेवेंट नहीं है उस पर बस ठीक है एन आपने लिखा हुआ है या डैश लिखे हैं एन लिखे हैं, ताकि कोशिश करें कि जो पेजेस वगैरह हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आपने इसमें की है ना फॉर्म के ऊपर, जो एजुकेशनल डेटा आपने दिया है उसमें आपने इंस्टीट्यूशन जो मैट्रिक का बताया है BISC सरगोदा लिखा है, तो yes sir, because I can explain it sir. हाँ, तो sir, ये I wrote by Sargodha जी because sir my academic, because I was very poor in matrix. In matric नहीं, class, इंस्टीट्यूशन से मुराद ये है, समझने की बात है। इंस्टीट्यूशन से मुराद ये होती है कि आपका जो स्कूल या कॉलेज था मैट्रिक का था, आपने उसका नाम लिखना है, बोर्ड का नाम नहीं लिखना होता। और आगे ग्रेड और परसेंटेज में आपने सिर्फ आपने परसेंटेज लिखी हुई है, ग्रेड नहीं लिखा, तो ये मतलब आपको दुरुस्त करने की जरूरत है। प्रोबेबली आपने फर्स्ट अपीयरेंस में जब आपने ISSB दी थी उसमें भी आपने इसी तरह लिखा होगा। और इसके साथ जो मीडियम है, मीडियम से आपका क्या मतलब, मीडियम के से क्या मुराद है आपकी? मीडियम से क्या मतलब आपने अखज़ किया है? At the time I fulfilled the form. Yes sir, at the time I fulfilled the form, I thought it was about the medium, science medium, commerce medium, or other medium. So that is why I wrote science medium. Yeah, I wrote computer science. But after this conversation, I am starting to think that it was about English medium or Urdu medium. हाँ जी, ये एक्चुअल में I should have filled with Urdu medium. हाँ, वो यही चीज़ है, बस ये बताना था ताकि आपको अंदाजा हो। देखिए, आपने एक चीज़ लिखी है वाचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, तो इसके ऊपर आप पे डेफिनेटली क्वेश्चंस होंगे अबाउट हिस्ट्री। तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्री आपने देखी है? Sir, they asked me the question in the interview in ISSB, and the psychiatrist asked me, what do you watch about history? Sir, I said I watched about French Revolution, American independence, and things like this, and sir, the Cold War, etc. And they asked me what I learned. And sir, where I told them I watched about French Revolution and some political events like that, where they judged my personality as a political one. And I would like to say that I watched, and I have already watched. I watched those documentaries about sir, like German unification, French Revolution, and sir, the American independence, American फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या होता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था सर? फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है?
Sir, French Revolution was the attempt to remove remove the feudal system from Europe, from especially from France, where they have successfully eradicated the system from France for about 10 years. But it wasn't a complete success because after that change, a new leader was chosen or made named Napoleon Bonaparte. अच्छा, दूसरा आपने जो ना अदर एक्टिविटीज में एक चीज लिखी हुई है, नमाज आपने लिखी है। नमाज क्यों लिखी है अदर एक्टिविटीज? सर ये मैं अभी पढ़नी शुरू की। हाँ सर क्योंकि मैं करता हूँ, क्योंकि मैं करता हूँ बिकॉज आई प्रे, दैट्स व्हाई आई तो राइट। नमाज तो ऑब्लिगेशन है, तो फर्ज है। ये अदर एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी है। अदर एक्टिविटी में तो आप वो चीज लिखते हो जो कभी कभार करते हो। तो आप नमाज कभी कभार पढ़ते हो? इट वाज माय मिस्टेक। मैंने कहा नमाज आप कभी कभार पढ़ते हो? नहीं सर, नाउ आई एम डूइंग इट रेगुलरली। रेगुलरली पढ़ना चाहिए। तो एज अ मुस्लिम हमारी ऑब्लिगेशन है, और इसको इस जगह पे ना लिखें, इसको कहीं पे लिखने की जरूरत भी नहीं है कि आप फॉर्म में नमाज लिखना शुरू कर दे। कल कोई तिलावत लिखेगा, कुछ कैंडिडेट जो ना वो कहने मैं जिक्र करता हूँ या करती हूँ, तो वो जो ना ये दुरुस्त कंसिडर नहीं किया जाता। तो अदर एक्टिविटीज आप अगर कोई कर रहे हैं, कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, या कोई कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रहे हैं, या कोई स्किल सीख रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे बेहतर होती हैं कि आप इसको इसी तरीके से लिखें। तो एक सिस्टर आपकी जो ना इंटरमीडिएट उसने कर ली है? यस सर, कर लिया उसने। तो आगे क्या प्लान है? कोई उसका आगे पढ़ने का है? Yes, sir. She is very eager to study ahead. She is क्या eager to study subjects है in उसके? university. She was in she was FIT. She studied FIT, and now she wants to do BSIT. तो कितने % मार्क्स आए थे उसके, कोई याद है? Yes, no, sir. She was probably she achieved more marks than me, about 890 or 900 above. नहीं, रिजल्ट निकला है या नहीं निकला भाई? रिजल्ट निकल गया। अच्छा ठीक है। तो अपने बहन भाइयों में आप मतलब आपकी एफिलिएशन या वो किसके साथ बहुत ज्यादा है? बहन भाइयों में आपकी जो एफिलिएशन है वो किसके साथ ज्यादा है कंपैरेटिवली? सर I as a big brother, I love all of my siblings, but the one I like the most is my little brother Ehsan. अच्छा, He's a gentleman. I would say this to describe his personality to you. ठीक है। Yes. चेस आपने लिखा है चेस में खेलता हूँ, तो चेस आप किसके साथ खेलते हो? ऑनलाइन खेलते हो या किसी? Sir, I play it online on chess.com. तो चेस में सबसे जो पसंदीदा आपका मूव या क्या कहते हैं, कौन सा होता है? कौन, जिस तरह प्यादे होते हैं उसमें किंग होता है, क्वीन होते हैं। Sir, in chess, yes sir, I like knight the most. नाइट In chess after queen, because queen is, yes sir, because queen is the most powerful pawn in chess. अच्छा, तो नाइट की क्या खूबी है? And the king, sir, it can fork easily between many expensive pieces, many powerful pieces. ठीक है ठीक है। And it can also cross from one pawn to the. It can also jump from a pawn to pawn. ठीक है। अच्छा, अगर एक सिचुएशन में दे रहा हूँ, आप बाहर गए हुए हैं अपने Yes sir. भाई बहनों के साथ, तो वहाँ पे रास्ते में Yes, sir. आपके साथ कुछ बदतमीज लोग टकरा जाते हैं, ग्रुप है, तो वो आप लोगों को तंग करते हैं, आपके बहन भाइयों को, तो क्या करेंगे? Sir, in the given situation, first of all, I would try to solve everything with voice or talk. I would try to go lenient. I will try to solve it leniently,
if they do not agree to my offer, if they do not agree with me and still try to harass me and my siblings, and then sir, I will simply call the police, and then they will take care of them. अच्छा, लेकिन पुलिस आने तक तो काम हो गया होगा, क्या करेंगे? So there will also be public, अच्छा, and if they try to cross the line, then I would handle them myself. ठीक है। राइट, तो आपको कभी जिंदगी में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है, प्रेशर सिचुएशन, जिसमें आपको लगा कि, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? कोई ऐसी सिचुएशन आई है स्ट्रेसफुल? Sir, there are many situations like I would like to tell you a situation where it was kind of very terrifying and also adventurous to me. Sir, I am applied to ASF as per the post of ASI, and after completing my first initial physical and medical test, it took me about 7:30 p.m. From it was about the time 7:30 p.m. when they they when they cleared me and passed me. I go to the station at Faisalabad and it took a bus to Sargodha. It was a time about 11 o'clock where when I was landed on. It was about 11:30 p.m. when I landed. It was about 11:30, sir, when I reached my nearest town and nearest Kasbah, and from where I had to walk on foot about 2 to 3 kilometers at night, where it was kind of terrifying and also adventurous to me. And I reached home safely without any problems, sir. ओके। अगर आप आर्मी में नहीं होते तो फिर क्या करेंगे? Sir, if I am not selected in army, then I would have many other things to do in my life. मसलन I would do some job and do something. I would invest my time in jobs and do some study to get eligible for PPSC, and then I will surely attempt to देखिए, PPSC. इस तरह के क्वेश्चन का ना आपके पास एक सॉलिड सा जवाब होना चाहिए ना, इफ एंड बट या ख्याल वाला कि मैं ये करूंगा। आप मतलब इसको कहते हैं सेकंड प्लान, अल्टरनेट प्लान या प्लान बी, कि पहले तो आप कोशिश करेंगे कि मैं इधर ही सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं होता तो अल्टरनेट प्लान मेरा ये है कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा और ये पर्टिकुलर चीज़ करूंगा। तो चीज़ों का आप स्पेसिफिक रखें, तो इंशाल्लाह जो भी आपका इंटरव्यू लेगा तो वो आपसे मुतासर हो जाएगा। और इंटरव्यू में यही कोशिश होती है कि आप जो है ना अगले बंदे को मुतासर कर सकें और फिर वो आपको रिकमेंड कर सकें। ठीक है, Thank you, sir. ओके, थैंक यू। अगर कोई इशू वगैरह हो तो आप किसी भी टाइम पे, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके, Thank you, sir. बेस्ट ऑफ लक। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Okay, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। ओके जेंटलमैन, जिस तरह आप लोगों ने पूरी कन्वर्सेशन के इंटरव्यू आप लोगों ने देखा सुना, तो फॉर द इनिशियल ये इंटरव्यू ठीक था कैंडिडेट के रिस्पॉन्सेस, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चीज़ें थी जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आल्दो कि मैंने कैंडिडेट को पर्सनली काउंसिल किया है, उसको अलग से बताया, वो वाला पार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कुछ जो इम्प्रूवेबल चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो फर्स्ट चीज़ जो है वो है इम्प्रूवमेंट जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में लाजमन होनी चाहिए। आप जो भी जवाब देंगे वो फ्लुएंट होना चाहिए और समझ में आना वाला होना चाहिए कि जो सुन रहा है या जिसको आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो आपकी जो बात है, आप जो कहना चाहते हैं उसको सही तरीके से समझ सकें। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन जो ना वो ज़रूरी है। उसके बाद आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो इस कैंडिडेट का पर्टिकुलर था, फेशियल एक्सप्रेशन इंटरव्यू के दौरान वो थोड़े से ठीक नहीं थे, उसको दुरुस्त रखने की ज़रूरत है। फेशियल एक्सप्रेशन जब कैंडिडेट आंसर दे रहा था तो वो थोड़ा सा अजीब था। इसी लिहाज से जो आपकी जो
फैमिली की जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास होनी चाहिए। आप यू शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड, पर्टिकुलर ये फादर की जो जॉब है, कहाँ पे, किधर है, कहाँ पे उसने सर्व किया है, और इस तरह आपके जो बहन भाई हैं उसकी एजुकेशन क्या है, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक अवेयरनेस है किसी भी कैंडिडेट की। इसी तरह जो जनरल नॉलेज है, जियोपॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है, जो पर्टिकुलरली जो आजकल चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो आपको पता होनी चाहिए। कैंडिडेट को भी इतना क्लैरिटी के साथ नहीं था। और पर्टिकुलर जब आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको मालूम होनी चाहिए। आपको उनकी जो जदीद प्लेटफॉर्म्स हैं या वेपन्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि जो रिसेंटली पाकिस्तान ने, आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने इंडक्ट किया है उसके मुतालिक जो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इस तरह आप जो भी रिस्पॉन्सेज देंगे वो फैक्चुअल होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, लेकिन साथ साथ वो इंगेजिंग भी होने चाहिए। इंगेजिंग इस तरह होने चाहिए कि आपके जवाब बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने चाहिए, ताकि जो इंटरव्यूअर है या जो इंटरव्यू कर रहा है आपका, वो उसको आप इंगेज कर सकें, उसका इंटरेस्ट जो है वो आपके अंदर बिल्ड हो। अदरवाइज वो फिर जल्द अज जल्द उस इंटरव्यू को ख़त्म करना चाहेगा। तो आपने जो इंटरेस्ट है इंटरव्यूअर का उसको ज़िंदा रखना है, ताकि वो आपके साथ इंटरव्यू करे, आपसे पूछे और आप जो है ना उसको इंगेज रखें। और इसके अलावा जो एक लास्ट क्वेश्चन में था कि अगर आप आर्मी में सेलेक्ट नहीं होते तो फिर क्या करेंगे, तो इस तरह के जो सवाल हैं उनके लिए आपको रेडी होना चाहिए और आपके पास एक कंप्लीट, एक लॉजिकल और क्लियर प्लान होना चाहिए कि उसके बाद आप क्या करेंगे। तो ये मोटी-मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको हर इंटरव्यू में आपको फेस करने पड़ेंगे और उसके लिए आपने अपने आप को तैयार रखना है। तो अभी अगर किसी को ISSB का जो कंप्लीट कोर्स है उसमें उसने इंडक्ट होना है या फिर आपने अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करना है मेरे साथ, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप का जो इंटरव्यू भी हो सकता है, या अगर आप कंप्लीट पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। तफसीलात के लिए आप इसमें मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच और आप लोगों का टाइम देने का शुक्रिया। और अगर किसी को मज़ीद अगर किसी को कोई क्यूरी है इस जो अभी इंटरव्यू में आप लोगों ने देखा सुना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप अपनी ISSB की तैयारी मुफ्त और दुरुस्त तरीके से कर सकें। तो तब तक इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।